Clear? Yes, sir. Clear, Vinayak? Yes, sir. Okay. So that is the basic difference between variable and object. A variable always, okay, denote the values, not functionalities, whereas an object denotes the values as well as their related Functionality. functionalities. Okay, you mean to say, sir, that if we create a class of animal and from that animal, if we create an object dog, so dog is itself is a sir very it will contain some values and it will contain also some functionalities like Yes. it will bark, he will bark, he will Yeah. Okay, बिल्कुल sir. ठीक है. Okay, so let's move to the, हम लोग कहाँ पे थे? I think क्लास बनाना सीख रहे थे सर. कोमल कुमारी raised hand की है. Yes, because I have a question, sir. बोलिए. So function and method both are the same thing or it may different? Function? Function and method, sir. The term function and methods, in terms of definition, both are same. But the two words are using here. The one word which is function is related with the procedural language, whereas the term method is related with the object-oriented language. Okay, that is the basic difference. Apart from that, syntactically, function and methods both are same. Functions defined separately in the procedural language, whereas a method defined within a class or within a object. It is a part of the object. Okay, Komal? Yes, sir. Okay. तो हम लोग एक्चुअली यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे और थोड़ा सा हम लोग ये कर रहे थे. एक चीज बाकी था, जनरेटर, वो देखे नहीं है, देख लेते हैं. मेरे को लग रहा है ना, वो जो हम लोग फंक्शन से कॉल कर रहे हैं, जनरेटर के साथ हम लोग को आइटरेटर को मिक्सअप करना होगा, क्योंकि आइटरेटर का काम है आइटरेशन करना और जनरेटर का काम है जनरेट करना. तो हम लोग दोनों मिक्स करके नहीं सोच रहे थे, अलग अलग सोच रहे थे. सो आई विल सी इट. ठीक है ना, आज पढ़ लेते हैं ऑब्जेक्ट, इसको नेक्स्ट क्लास में देख के आपको बता दिया जाएगा. So this is not the slide which you have opened previously. ये वाला नहीं है. पाइथन ऐड ऑन बीसीए पीपीयू सेकंड, यही तो है. So yesterday you have written the definition of class and also the syntax there. वहाँ पे लिख दिए थे जी. Sir, I think it is in section 3. तो वो हम किसी दूसरे में लिख दिए थे क्या? Maybe sir, maybe. एक मिनट चेक कर लेते हैं. इसमें लिख दिया फिर पाइथन. Yes, there is one more sir, BCA second year. Yes, one sir. Yes sir, it is the one. Okay. So we can define the class in Python language like that. You have to write the keyword class, then after follow the name, that is the class name, and after that you have to write colon. Okay, and then after within a class within a class block you can define the data as well as functions. Okay. There are two basic scope of data and functions. Actually, OOPS provide 3 scopes, but in Python, it follows 2 scopes.
data and method accessibility. Method accessibility. Python supports two accessibility. Ability within class for accessing the data methods. You can also say that methods as well functions. आप यहाँ पे मेथड को फंक्शन भी बोल देंगे तो कोई गलत नहीं है और कोई गलत मानेगा भी नहीं. ओके, बट द गुड वर्ड इज अनडाउटली मेथड. ठीक है, इफ you are associated with the class, ठीक है, and you are defining a function, then the good word for that class is the method, not function. ठीक है, लेकिन दोनों सेम है, सिंटैटिकली दोनों सेम है. अगर हम फंक्शन बोल भी देते हैं तो ऐसा कोई, ठीक है, दिक्कत की बात नहीं है और कहीं पे भी दिक्कत की बात नहीं है. ठीक है, ओके. अगर इफ यू आर अ क्वालिफाइड पर्सन, इफ आई एम द क्वालिफाइड पर्सन, ठीक है, एंड आई नो एवरीथिंग, और मैं बोलते बोलते, ठीक है, मैं मेथड की जगह पे फंक्शन भी बोल जाऊं, तो ऐसा कोई नहीं है कि कोई इसको गलत नजरिए या गलत व्यू पॉइंट से आपको ऑब्जर्व करेगा. ऐसा बिल्कुल नहीं. ठीक है, तो आपको ये दिमाग में लेके एकदम बिल्कुल बायस नहीं रहना है कि भाई मेथड की जगह पे हमने फंक्शन बोल दिया. ठीक है, तो आप कह सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन द सुटेबल वर्ड इज अनडाउटली मेथड्स. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मेथड से रिलेटेड दो एक्सेसिबिलिटी है. फर्स्ट इज कॉल्ड प्राइवेट. ठीक है, अगर प्राइवेट एक्सेसिबिलिटी है, एक्सेसिबल विद इन क्लास, एक्सेसिबल विद इन क्लास, not outside the class. ये सिर्फ क्लास के अंदर होगा, क्लास के बाहर ये एक्सेसिबल नहीं होगा. अगर आप ऑब्जेक्ट इस क्लास का कहीं पे भी बाहर में बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट से इस प्राइवेट डेटा या मेथड को आप एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो एक्सेसिबल नहीं होगा, वो एक्सेसिबल नहीं होगा, वो एक्सेसिबल नहीं होगा. पॉइंट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्या समझे? एक पॉइंट बता दीजिए जब जल्दी से. सर जो भी ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे सर वो आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं होगा. आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं होगा. नहीं होगा, तो सर बिल्कुल. क्लास के अंदर ही डिफाइन करना पड़ेगा. हाँ, तो आपको क्लास बनाओगे तो क्लास के अंदर तो डेटा और मेथड जब तक नहीं बनाओगे उसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा? इफ यू, ठीक है, अगर तुम मान लो कि डॉग को तुम नहीं डिफाइन करोगे तो हाउ यू कैन क्रिएट द पोमेरियन, हाउ यू कैन क्रिएट द बुलडॉग? मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात? यस सर. ओके, अगर तुम एनिमल को क्रिएट नहीं करोगे तो हाउ यू कैन क्रिएट द डॉग, हाउ यू कैन क्रिएट द हॉर्स, हाउ यू कैन क्रिएट द एलिफेंट? तो पहले तो आपको बनाना होगा ना. ऑब्जेक्ट को यूज करने से पहले आपको क्या तैयार करना होगा? क्लास. ठीक है, मतलब हम एक एंटायर दुनिया के जो भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं उनका प्रॉपर्टीज और बिहेवियर कंबाइंडली हमने सोच लिया है. एनिमल में रख दिया. हाँ, उनको सोच के हमने एनिमल बना दिया. अब हम उस एनिमल से, ठीक है, डॉग बना दे, हॉर्स बना दे, एलिफेंट बना दे, जिनको जो प्रॉपर्टी यूज करना है करे, जिनको नहीं करना है
ना करें। ना करे, मैंने तो सारे के लिए बना दिया। नहीं, Yes, हमने sir. बैंक बना दिया, हमने बैंक की जितनी भी फंक्शनलिटीज, जितने एसोसिएटेड डेटा, सारा सोच के डाल दिया। अब हम उससे डिफरेंट बैंक बना दिए भाई, जिनको आपको फॉलो करना है कीजिए। हमने आपको हर तरह का लोन दे दिया है, आप अगर 2-3 ही लोन दे रहे हैं तो तीन ही को यूज कीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये एक फायदा होगा हमारे पास यहाँ पे। तो हम जो ये प्राइवेट और जो पब्लिक आपकी जो बात करेंगे, वो किसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग। ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग, लेकिन क्लास के अंदर। ठीक है, सर क्योंकि डिफाइन तो हम क्लास न करेंगे, बनाएंगे क्या? क्लास। बनाएंगे क्या? क्लास। क्रिएट क्या करेंगे? क्लास। और इस क्लास क्रिएट हो जाने के बाद इससे डिक्लेयर क्या करेंगे? वेरियस ऑब्जेक्ट्स। यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा किसके द्वारा? क्लास के द्वारा। ठीक है, हमें डेटा टाइप बनाने की जरूरत होती है, वेरिएबल तो ऑटोमेटिकली बन जाता है, जो उस डेटा टाइप के प्रॉपर्टी को आपका अचीव कर लेता है। नहीं, इंट बना हुआ है तो आप एक्स बना लेते हैं। इंट का पहले से डिफाइंड है कि 2 बाइट होगा, -32,768 से प्लस 32,767 तक के वैल्यू को वो होल्ड करेगा। अगर आप एक्स बनाते हैं तो वही प्रॉपर्टीज वो भी फॉलो करता है, वही बनाते हैं तो वही प्रॉपर्टीज वो भी फॉलो करता है। अब आपकी मर्जी है कि एक्स में आप 10,000 रखें, वाई में आप 5,000 रखें, तो आपके यूज पे डिपेंड करता है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही सारी बातें। ठीक है सर, एक बार क्लास, हेलो सर। हाँ हाँ, सर एक बार थोड़ा क्लास को बता दीजिए ना सर। क्लास तो बताए थे पिछली हाँ क्लास सर, में, बता देते हैं। थोड़ा लेट अच्छा, बता देते हैं, पहले यहाँ पे समझ लीजिए। अब प्राइवेट जो होता है किसी क्लास का डिफॉल्ट नहीं होता है। ठीक है, हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज द प्राइवेट डेटा एंड फंक्शंस विद इन क्लास? उसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना होगा? डबल अंडरस्कोर। वेरी गुड, डबल अंडर स्कोर। मतलब अगर आपने ऐसे लिख दिया तो दिस इज प्राइवेट डेटा। ये किस तरह का डेटा हुआ? प्राइवेट। ये क्लास के अंदर ही रहेगा, क्लास से बाहर ये निकल नहीं सकता है। ठीक है, अगर हमने कुछ ऐसे बना दिया, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? प्राइवेट मेथड। क्या हो गया? प्राइवेट मेथड। Hello, ओके, sir. दिस इज नॉट अ डिफॉल्ट स्कोप। ये डिफॉल्ट नहीं होता है, आपको करना पड़ता है। डिफॉल्ट इसमें पब्लिक होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? पब्लिक होता है। हाँ जी, गौरव कुमार बोलिए। गौरव कुमार बोलिए। सर यहाँ पे प्राइवेट डेटा मीन्स क्या हो सर? क्लास जो बनाएंगे उसके अंदर क्या क्या रखेंगे? डिफरेंट टाइप का सर डेटा टाइप रखेंगे, डिफरेंट डेटा। सिर्फ डेटा? डेटा सर ऑब्जेक्ट का फंक्शन डेटा? डेटा अरे जैसे आप सी में स्ट्रक्चर पढ़ के आए हैं ना, एंड स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर है ना, डेटा ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन वो सिर्फ डेटा ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है, मेथड ऑर्गेनाइजेशन नहीं प्रोवाइड करता है। क्या स्ट्रक्चर के अंदर आप फंक्शन लिखे थे क्या कोई? नो सर। नहीं, तो वो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है, दैट वाई उसमें सिर्फ आपको डेटा ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटी है, जिससे आप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना सकते हैं, जिसमें सिर्फ डेटा होगा, फंक्शंस नहीं होगा। नहीं होगा। और जो सर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाया गया, उसमें यही कंसेप्ट को चेंज किया गया कि जो भी हम डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं उसकी फंक्शनलिटी भी तो उसी से एसोसिएटेड होती है, तो उसको हम बाहर क्यों रखें?
हम क्यों ना उसको उसी के साथ जोड़ दें, ठीक है, और वो ये डिसाइड करे कि क्या मेरे को बाहर एक्सेसिबल देना कराना है और क्या बाहर एक्सेसिबल नहीं कराना है, ठीक है। तो उसके लिए हुआ ये कि डेटा और फंक्शन दोनों को कंबाइन करना होगा। आगे ठीक है, क्लास बना लीजिए। क्या बना लीजिए? क्लास। तो जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आए कंसेप्ट, उसमें किसका कंसेप्ट दिया गया? क्लास का। दैट दिस इज आल्सो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ये भी क्या है? यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। मैंने कहीं लिखा भी होगा इसको, ठीक है। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, यस सर। ये हेलो देखिए सर, यहाँ पर लिखा शंकर हुआ वेटिंग में है सर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। अब इस क्लास के अंदर आप दोनों चीज रखेंगे, डेटा भी रखेंगे, ठीक है, और फंक्शंस भी रखेंगे। और ये क्लास आप किस लिए बना रहे हैं? ताकि आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकें। अगर हम ये क्लास स्टूडेंट बना रहे हैं, हम स्टूडेंट से विनायक बना सके, ठीक है, कोमल क्रिएट कर सके, ठीक है, किसले क्रिएट कर सके। बात आप समझे? बिकॉज दीज आर द स्टूडेंट्स। और यही ये डेटा और फंक्शंस को फॉलो करेंगे, क्योंकि क्लास तो इन्हीं से रिलेटेड है। अगर मैं क्लास टीचर बना रहा हूं, ठीक है, तो उससे एक ऑब्जेक्ट रवि सोनी सर बनेंगे, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट अमित शुक्ला सर बनेंगे, तीसरा ऑब्जेक्ट नीरज सर बनेंगे, ठीक है, चौथा ऑब्जेक्ट अंजेश सर बनेंगे। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात? यस सर। Yes, sir. ठीक है, सर तो इसमें डेटा कौन होगा और फंक्शन क्या होगा वो सर? मैं बता रहा हूँ, उतना एक्साइटेड नहीं होना है। वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ। क्लियर? पहले कम टू द पॉइंट आ जाते हैं। पहले ये दो चीज तो दिमाग में क्लियर कर लीजिए। क्या? कि अगर प्राइवेट बनाना है तो आपको क्या इस्तेमाल करना होगा? डबल अंडरस्कोर। डबल अंडरस्कोर। इसको दिमाग में फिट कर लीजिए। एंड पब्लिक, accessible anywhere, accessible within class, outside the class. accessible within class, outside the class. ठीक है, outside the class, ठीक है। और this is the default scope। ये क्या होता है? डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट। यानी अगर आप अंडरस्कोर यूज नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या बनेगा? ठीक है, पब्लिक। पब्लिक। अब जैसे मान लेते हैं आप सिंपल x लेते हैं, x इज इक्वल टू 10 कर देते हैं, ये पब्लिक है। ये क्या है? Public. पब्लिक। अगर ये क्लास के अंदर ऐसे लिखते हैं तो ये पब्लिक है। अगर क्लास के अंदर कोई आप डेफ लिख देते हैं, ठीक है, और सम बना देते हैं, ठीक है, तो ये क्या है? Public है। लिख है। मतलब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्स और सम दोनों का इस्तेमाल करेंगे। ये मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा सब चीज, ठीक है, सिर्फ अभी आपके दिमाग में ये भरना है। ओके। वेरिएबल, पाइथन में वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे होता है? इम्प्लिसिट की एक्सप्लिसिट? इम्प्लिसिट सर। Implicit sir. ठीक है, इम्प्लिसिट। ओके, पहले हम आपको इस पे थोड़ा सा एक क्लास छोटा सा बना के और उसको यूज करके बता देते हैं, ठीक है। क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बता दिए थे, पिछले क्लास में नहीं हुआ था, ठीक। ये तो हुआ क्लास के अंदर का। अब आते हैं हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ठीक है, आप यहाँ पे क्लास का नाम दे दीजिए और क्या दे दीजिएगा? सॉरी ऑब्जेक्ट सर। सॉरी 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 सॉरी, ये दूसरे लैंग्वेज का स्टाइल याद दिमाग में आ गया। यहाँ पे आप दे देंगे ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू, किसका नाम? क्लास नेम। और ब्रैकेट। ये ब्रैकेट कुछ चीजों को रिप्रेजेंट करता है, आगे आपको बताएगा, ठीक है। इस तरह से आप जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहें क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सेमीकोलन भी देना है सर लास्ट में? ना, नहीं देना है, नहीं देना है, ठीक है।
ऑब्जेक्ट 1 बनाइए, ऑब्जेक्ट 2 बनाना है तो फिर आपको ऐसे ही बनाना होगा। ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू फिर क्या लिखना होगा आपको? क्लास नेम। हाँ, क्लियर Yes, क्लियर। sir. Yes, sir. वो वाला तरीका नहीं है, सी वाला तरीका नहीं है कि एक बार लिख दिया कोमा देके करते चले गए, वैसा इसमें व्यवस्था नहीं है। आपको हमेशा ऐसे ही बनाना होगा। अब है कि क्लास अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए तो डाटा और मेथड को कैसे एक्सेस करेंगे? एक्सेस ऑफ क्लास डेटा एंड मेथड यूजिंग ऑब्जेक्ट। तो कहता है कि बिल्कुल सिंपल सर, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और डॉट लगाएंगे, और डेटा है तो डेटा दे देंगे, और मेथड है तो मेथड लिख देंगे। हो गया सर, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इस ऑब्जेक्ट से जो डेटा और मेथड एक्सेस होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए? इस ऑब्जेक्ट से, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर नहीं बनता है। ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है? Outside the class. आउटसाइड द क्लास। तो जब आउटसाइड द क्लास बनेगा तो ये डेटा और मेथड क्या होना चाहिए उसके लिए? Public. ऑलवेज Public. पब्लिक। अभी Public. आप कर सकेंगे, और अगर प्राइवेट होगा तो आप ऑब्जेक्ट से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके। थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल्स हम लोग इस पे ले लेते हैं। एक और चीज है कि नॉर्मली जब हम कोई क्लास बनाएंगे, क्लास का सिंटेक्स कुछ बच्चों का छूट भी गया था, वो भी मैं बना ला रहा हूं। एक बार फिर से क्लास सिंटेक्स बता देते हैं। प्रियंका कुमारी रेज्ड हैंड, बोलिए प्रियंका। सर जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं तो उसको मतलब कि पब्लिक में ही करेंगे, उसको प्राइवेट में नहीं कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट प्राइवेट पब्लिक नहीं होता है, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट होता है। तो सर अभी आप बोले क्लास में उसको नहीं करेंगे, मतलब कि आउटसाइड द क्लास करेंगे। प्राइवेट पब्लिक जो होता है वो डेटा और फंक्शन होता है। क्या होता है? डेटा और डेटा और फंक्शन। फंक्शन। किसका? क्लास का। क्लास का। क्लास का, ठीक है। और हम उस क्लास से ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हम उस क्लास से क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कहाँ? क्लास के बाहर, कहीं दूसरे जगह, ठीक है। तो जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस ऑब्जेक्ट से हम क्या एक्सेस करेंगे? क्योंकि वो क्लास का ही ऑब्जेक्ट बना है तो इस ऑब्जेक्ट में भी तो वही डेटा और मेथड न मिलेगा। तो कहता है क्लास बनाते समय जिन चीजों को पब्लिक किए होंगे उनको तो आप यूज कर लेंगे ऑब्जेक्ट से, लेकिन जिनको प्राइवेट किए हैं, ठीक है, उनको आप यूज नहीं कर एक्सेस पाएंगे। नहीं कर सकते। नहीं ठीक। कर सकते। यहाँ ध्यान देना है कि जो हमारा वर्क कल्चर है, ठीक है, पूरी दुनिया में जो भी काम हो रहे हैं, सारे चीज को पब्लिक कर दे ऐसा भी संभव नहीं है, नहीं है। और सारे चीज को प्राइवेट भी कर दे ये भी संभव नहीं है। नहीं है। कैसे होगा? एक एटीएम मशीन में पैसा रखा होता है, हमको पैसा बचाना है, हम एटीएम वाला जो दुकान है, जो शॉप है, वही बंद कर दिए, ताला लगा दिए, तो क्या एटीएम का कोई यूटिलाइजेशन होगा? No, No, sir. sir. नहीं। मतलब हमें एटीएम आपको यूज करने की परमिशन देना है, लेकिन उतना ही देना है जिसे आप यूज कर सके, और जो आप यूज नहीं कर सके उसे मैंने प्राइवेट बना दिया। जैसे पैसा जहां रखा हुआ है लॉक कर दिया है, ठीक है। आप कार्ड लगाते हैं, आप यूजर नेम देते हैं, आप पैसा अमाउंट भरते हैं, कैसे 500 हो रहा है, कैसे 200 हो रहा है, कैसे 100 हो रहा है, ये आपको नहीं पता है। बस आप समझ रहे हैं कि इस हालत में हमको पैसा मिल सकता है। कभी कभी क्या होता है कि आप सोचेंगे कि 3 500 का आएगा, 2 200 का आएगा, 1 100 का आएगा, आ जाता है 20 ठो आपको 100 का, या 4 आपको आ जाता है 500। ये तो आपको नहीं पता होता है, ठीक है। Yes. दिस इज द इनर प्रोसेस। ये प्राइवेट है, ये आप नहीं एक्सेस कर सकते हैं, यू डोंट नो। इसी को हम लोग एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
एब्स्ट्रैक्शन, एब्सटेंस। ठीक है, यानी कुछ प्रोसेसेस जो आपसे हाइड होके इंटरनली प्रोसेस्ड हो रहे हैं, ठीक है, सिर्फ आप समझ रहे हैं पर आप देख और जान नहीं रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। इसको थोड़ा और बनाते हैं ना, क्लियर हो जाएगा। ओके सर। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं, मान लीजिए क्लास देते हैं और यहाँ पे कोई भी क्लास का नाम देते हैं, सब कुछ भी ले लीजिएगा, लाइक स्टूडेंट या XYZ जो भी मान लीजिए वो आप, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे गए, यहाँ हमने लिख दिया रोल इज इक्वल टू 0, ठीक है, और मैंने यहाँ पे गया और एक फंक्शन मुझे बनाना है डेफ कुछ भी, इंक्वायरी, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ तो डेटा डिक्लेयर है, डेटा किस तरह का है, पब्लिक है कि प्राइवेट है, पब्लिक। 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 तो कहीं पे भी इसका मतलब है कि इस रोल को ये इंक्वायरी भी यूज करेगा। यस सर। यस सर। अरे अगर हम इस इंक्वायरी में आकर रोल को यूज करना चाहें तो कर सकते हैं ना, इनपुट आउटपुट कुछ भी। यस सर। अरे जब पब्लिक ही है तो अंदर भी यूज होगा, बाहर भी यूज होगा, हर जगह यूज होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि इस इंक्वायरी में मैंने यहाँ पे मान लीजिए 15 मैंने स्टोर कर दिया, क्या स्टोर कर दिया, 15। अब बाद में हम इस स्टूडेंट का एक एस बनाए, एक एस नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया, सॉरी, ठीक है, स्टूडेंट का एस नाम का ऑब्जेक्ट बनाए। अब अगर हम एस डॉट रोल करेंगे तो वो हमको क्या देगा, यहाँ पे 15। हम यहाँ ये कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं सर, क्योंकि रोल क्या है, ऑब्जेक्ट। पब्लिक। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इंक्वायरी भी करेंगे, एस डॉट इंक्वायरी भी करेंगे, ठीक है। तो इंक्वायरी करेंगे तो वो हमसे नंबर मांगेगा कि भाई इंटर रोल नंबर, हम जो देंगे वो एक्सेप्ट करेगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। लेकिन यहाँ वेरिएबल का जो कंसेप्ट है वो इम्प्लिसिट है, तो हम यहाँ रोल रखें या ना रखें, इम्प्लिसिट में तो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, तो यूज करने के पहले क्या रोल को डिक्लेयर करना जरूरी है, पता है कि कर भी सकते हैं ना भी कर सकते हैं। तो सर ना करते हैं तो फिर यहाँ जो रोल हम लिखेंगे, यहाँ जो आपने रोल लिखा, यहाँ ध्यान से समझना है, यहाँ जब हमने रोल दिया और यहाँ जब हम रोल यूज कर रहे हैं तो ये रोल किसका, इस क्लास का, क्योंकि पाइथन जब आपको क्लास को पढ़ने आया तो क्या पढ़ लिया, रोल इक्वल टू 0। रोल इक्वल्स टू 0। ठीक है, और आप रोल यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये समझ गया कि आप किसके लिए यूज कर रहे हैं, स्टूडेंट क्लास के लिए, स्टूडेंट के लिए। लेकिन ये तो इम्प्लिसिट, यह तो कर रहा है कि तो नहीं भी तो हो सकता है सर, डायरेक्ट हम डायरेक्ट क्लास के डेटा को यूज करना चाहते हैं बिना डिक्लेयर किए, इसमें थोड़ा ऐसा है, इम्प्लिसिट है। तो अगर हम ये रोल लिखेंगे तब कहता है पाइथन की ये तो हम तब फिर इंक्वायरी का समझेंगे, क्योंकि हर फंक्शन का अपना भी तो लोकल डेटा होता है, यस सर। ठीक है। तो फिर हम कैसे प्रमोट करेंगे इस क्लास का कि नहीं ये रोल तुम्हारा नहीं है, ये रोल क्लास का है, ठीक है। तो उसके लिए कहता है ना कि एक पैरामीटर, हर फंक्शन को बनाते समय उसके अंदर एक पैरामीटर हम लोग यूज करते हैं, उस पैरामीटर को कहते हैं क्या, सेल। सेल। सेल, ठीक है, और भी हो सकते हैं पैरामीटर सेल्फ के अलावा भी। ये सेल्फ किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लास। मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं है और मैं यहाँ लिख दूं सेल्फ डॉट क्या, रोल, तो ये कहेगा, इंक्वायरी कहेगा ये मेरा नहीं है, ये किसका है, क्लास का। क्लास का। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करते हैं। विकास कुमार सिंह हैंड रेज किए हैं, बोलिए विकास।
अरे एक बार बताए थे प्राइवेट और पब्लिक में कैसे समझेंगे? यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझा देते हैं, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। कुछ चीजें थ्योरी से नहीं आती है तो प्रैक्टिकली पहले देख लीजिए, उसके बाद दोनों से नहीं होगा तब हमसे पूछिए, ठीक है। एक सिंपल हम क्लास बनाते हैं, क्लास किसी भी नाम से बना दीजिए, ठीक है। स्टूडेंट ही के नाम से बनाइए, ओके। और इसमें हम कुछ नहीं करते हैं, एक मेथड बना देते हैं, इसका है फंक्शन, लेकिन कहेंगे क्या, शो बना देते हैं हम, और इसके अंदर क्या रख देंगे, सेल्फ, ठीक है। और इसके अंदर प्रिंट कुछ एक मैसेज डाल देते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं बनाते हैं, इसके अंदर सिर्फ एक मेथड है, डाटा नहीं है, ना ही कोई डाटा का इस्तेमाल हो रहा है। नो सर। अभी पर्पस सिर्फ क्लास और ऑब्जेक्ट बना के सिखाना। अब मैं इसका एक एस ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। और एस डॉट क्या कर दे रहा हूँ, अल्टर कर रहे हैं, ठीक है। कोई डाउट? नो सर। ठीक। मुझे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए काम करना है, अलग अलग बना लीजिए, ठीक है। P इज इक्वल टू क्या कर दीजिए, ठीक है। अब जैसे एस का शो किए वैसे P का लिए हुए क्या कर लीजिए, शो कर लीजिए। अब रन कराइए, डाउट? नो सर। नो सर। नहीं, जरा सा भी डाउट हो पूछ लीजिएगा, क्लियर। यानी जो आप क्लास बनाए हैं उसके सैकड़ों हजारों जितने ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, वो ऑब्जेक्ट आप बना के, ठीक है, उसके अंदर जो भी डेटा मेथड्स है उन सबको यूज कीजिए। एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसका अपना मेमोरी है, इस एस का अपना मेमोरी है, इस पी का अपना मेमोरी है, भले उस मेमोरी में चीजें एक ही है, ठीक है, लेकिन दोनों के मेमोरी अलग अलग है, दोनों का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। जैसे इंट एक्स वाई कर रहे हैं तो एक्स भी 2 बाइट, वाई भी 2 बाइट, ठीक है, लेकिन एक्स का 2 बाइट अलग, वाई का 2 बाइट अलग। अलग। अगर आप एक्स में 10 स्टोर करते हैं तो वाई में नहीं होता है, वाई में जब करते हैं तो वाई में होता है। बात आप समझ गए? यस सर। ओके। हेलो सर, ऊपर में क्लास स्टूडेंट के नीचे डेव उसका शो सेल्फ जो लिखे हुए हैं, ये हाँ, सेल्फ नहीं बताइए। लिखना चाहिए। वहाँ सेल्फ ही क्यों लिखेंगे कुछ? अच्छा, सेल्फ मतलब नहीं लिखना चाहिए, है ना? नहीं समझ में आ रहा है सेल्फ क्यों लिखे हैं? यह सर नहीं समझ आया। इसके पहले समझा रहे थे तो आप कहाँ थे? क्लास में थे। अब विनायक सेल्फ क्यों लिखे हैं? सर सेल्फ इसलिए लिखे सर ताकि उसको जब हम लोग उस ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं, उस मेथड को ऑब्जेक्ट को यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मेथड को एक्सेस करने के लिए सेल्फ सर। यहाँ किसको रिप्रेजेंट करता है? क्लास को। किस क्लास को? ये किस क्लास को रिप्रेजेंट करेगा? मतलब हम सेल्फ के जरिए डेट, हम क्लास के अंदर दो ही काम ना करेंगे, या तो डेटा का या तो मेथड का। अगर सेल्फ लगा के हम डेटा का नाम लिख दें तो वो डेटा किसका मानेगा? क्लास का। अभी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी वेट कर जाइए, ठीक है, सेल्फ का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 12 लिखूं तो ये किसका डेटा है? क्लास का। ठीक है। और यहाँ पे एक को हटा देते हैं, एक ही को रहने देते हैं, ठीक है। अब मैं रन करा रहा हूं,
क्या आ रहा है? एरर सर, क्यों एरर आ रहा है? एरर क्यों आ रहा है? नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड। अब चलिए ठीक है, देखिए ये एरर कैसे रिजॉल्व होगा, तुरंत क्लियर हो जाएगा आपके पास, यहीं पे ध्यान रखिए। अगर मैं आके x इज इक्वल टू यहाँ पे 15 कर दूं, क्यों ऐसा हुआ? x तो है। देखिए अब सेल्फ का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, x तो है ना, लेकिन फिर भी हमको दोबारा इसमें x इज इक्वल टू क्या किए हैं? 15 किए। ये कह रहा है कि नहीं सर, ये मेथड जो है ना, ठीक है, वो कहता है कि जब आप x लिखते हैं तो वो कहता है कि मैं अपना x समझने की कोशिश करता हूं, और जब मैं अपना x समझने की कोशिश करता हूं तो जाके मैं अपने मेथड में देख रहा हूं तो कोई x नाम का कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो मैं एरर दे रहा हूं। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं सर x तो क्लास में है, तो ये कह रहा है क्लास में है तो क्लास को प्रमोट करने के लिए तो आपको क्या दिया हुआ है? सेल्फ। आप यहां पे अगर लगा दीजिएगा सेल्फ डॉट क्या x, तो मैं अपना नहीं समझूंगा, मैं किसका समझूंगा? क्लास का। क्लास है। तो अब इस केस में क्या आना चाहिए आउटपुट? 12 12 12 से। आ गया। यस सर। यस सर। अब क्लियर हो गया, सेल्फ का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, यानी जब भी क्लास के डेटा को मेथड को प्रमोट करना होगा आपको किसका इस्तेमाल करना होगा? सेल्फ का। सेल्फ। और जब लोकल डेटा है तो लोकल जैसे है, आप अगर यहाँ पे डायरेक्ट आप x लिखिएगा तो ये फिर मेथड अपने अंदर खोजेगा कि x है कि नहीं। क्लियर? ठीक। अब मान लीजिए कि ये x इज इक्वल टू 15 नहीं है, ये आप लोग नोट कर लिए क्या? यहाँ पे 2 Yes, लाइन sir. लिख देते हैं, यहाँ पे 2 आंसर दे देते हैं। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ये इस तरह से रन करेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ क्लियर हो गया? यस सर। ओके, ये सर। डाटा कैसा है क्लास का? x प्राइवेट या पब्लिक? पब्लिक सर, पब्लिक। पब्लिक है सर। ये मेथड कैसा है? प्राइवेट या पब्लिक? पब्लिक सर। पब्लिक है पब्लिक। सर। एंड दैट्स वाई अगर हम अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे हमने शो को कॉल किया जो कि पब्लिक है। हम x को भी तो यहाँ एक्सेस कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस सर। अगर हम Yes, यहाँ sir, पे कर लिख सकते दें हैं। प्रिंट और s डॉट क्या लिख दें, x तो 12 क्या मिलना चाहिए? 12 12। 12। चेक करते हैं, मिल रहा है? यस सर। यस सर। मिल रहा है ना जी? यस सर। ठीक है, ओके, तो पब्लिक से क्या समझे कि जो भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं पब्लिक उस ऑब्जेक्ट के द्वारा कहीं पे भी एक्सेसिबल होगा। होगा, कहीं पे भी एक्सेसिबल होगा, कहीं पे भी एक्सेसिबल। प्लीज रिपीट सर, पब्लिक से बना रहे तो अगर ऑब्जेक्ट पब्लिक किसी भी क्लास के अंदर का डेटा मेथड पब्लिक है तो उस क्लास के जो भी ऑब्जेक्ट बनेंगे कहीं पे भी बनेंगे वो उसके द्वारा एक्सेसिबल होगा। एनी डाउट? नो सर। अब लेट्स कम टू दी प्राइवेट भी समझा दें। यस सर। अब अगर सारे के सारे एक क्लास के अंदर सारे के सारे चीजों को मैंने प्राइवेट कर दिया तो क्या उस क्लास का कोई इंपॉर्टेंस होगा? नो सर। नो सर। नहीं, मतलब एक दुकान में मैंने एटीएम मशीन बैंक ने रख दिया है और दुकान को हमेशा 365 दिन ताला लगाए रखे, तो उस एटीएम का कोई इंपॉर्टेंस है? नहीं है। यस सर। का मतलब ये हमें ध्यान रखना होगा कि प्राइवेट हम करें
लेकिन सारे के सारे चीजों को हम प्राइवेट नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे x को भी प्राइवेट कर दूं और सो को भी प्राइवेट कर दूं, तो फिर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का कोई मतलब ही नहीं होगा, है। क्योंकि ना x कॉल होगा और ना सो Right. कॉल होगा। ठीक, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे मैं x को प्राइवेट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? X को प्राइवेट, x को प्राइवेट हो गया। यस सर। ठीक है, ये जैसे था वैसा ही रहने देते हैं, ये सब वैसा ही रहेगा। ये तो इसका लोकल डेटा है। अरे ये तो मेथड का लोकल डेटा है। Yes, sir. ठीक है, ओके, ये तो ऐसे भी एक्सेसिबल नहीं होगा। मेथड एक्सेस होगा तभी ये मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या सेल्फ डॉट एक्स लिखे है, ये सही है? तो कहता है कि नहीं, अगर वो प्राइवेट है तो यहाँ भी वो डिनोशन होना चाहिए। ठीक है सर, कैसे? ये तो प्राइवेट है, कैसे यूज करेगा? तो क्लास हमने कहा कि प्राइवेट क्लास के अंदर यूज नहीं होगा। क्लास के अंदर तो यूज होगा, क्लास के बाहर जो ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा यूज नहीं होगा। तो नहीं यहाँ तो होगा। यूज होगा। ये सो तो इसी क्लास का मेथड है ना, तो यहाँ पे ये यूज होगा। ये वाला लाइन जो आप कर रहे हैं ना, ये नहीं होगा, यहाँ एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। अब मैं इसको सेव करके रन कराने की कोशिश करता हूँ। आ रहा है, और देखिए Yes, sir. वहीं पे एरर आ रहा है जहां पे मैंने आपको बताया। Yes, sir. ठीक है, और अगर मैं इस लाइन को हटा दूं, ठीक है, रन कर गया। Yes, sir. ठीक, सर तो इसका मतलब क्या समझे कि अगर कोई डाटा प्राइवेट आप बना रहे हैं तो वो एक्सेसिबल। आउटसाइड नहीं। द क्लास नहीं हो पाएगा। अब मान लीजिए सर, ये तो डाटा पे आप समझा दिए, अगर संयोग से हमने सो को भी क्या बना दिया, प्राइवेट। तब तो सर यहाँ पे आप ऐसा कीजिएगा। अब प्राइवेट है, ये एक्सेस होने ही नहीं देगा, इसका कोई मतलब ही नहीं, ये यूजलेस हो गया। ये जो क्लास हो गया, ये क्या हो गया? यूजलेस क्लास हो गया, क्योंकि सारे चीजों को मैंने क्या कर दिया? प्राइवेट। इसके डेटा को भी प्राइवेट कर दिया और इसके मेथड को भी प्राइवेट कर दिया। ठीक है, लेकिन मैं एक काम करूं, अगर मैं एक और डेफ बना दूं, सॉरी, और इसको मैं डिस्प पर रख दूं, ठीक है, और मैं इससे तो को कॉल कर लूं, और यहां से डिस्क। स्टूडेंट सो इज नॉट डिफाइंड, स्टूडेंट सो इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, यहाँ पे एक ले लेते हैं, एम ले लेते हैं, सॉरी, एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, इसके अंदर एक एम बना देते हैं और यहाँ लिखते हैं एम डॉट क्या हो गया। Yes, sir. ठीक, अब इसमें क्या हुआ? ये प्राइवेट, लेकिन ये डिस्प्ले क्या हो गया स्टूडेंट का? पब्लिक। पब्लिक। तो एस डॉट डिस्प्ले हम कर सकते हैं। सर यहाँ m is equals to student। एक मिनट रुक जाइए, पहले एकदम हल्ला नहीं करना, बिल्कुल हल्ला नहीं करना। ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पे एक्स क्या? प्राइवेट, सो क्या? प्राइवेट, डिस्प्ले क्या? पब्लिक। यहाँ से डिस्प्ले को कॉल कर रहे हैं, इट इज ओके, लेकिन हम डिस्प्ले से करना क्या चाहते हैं? हम सो को कॉल करना चाहते हैं। वो तो कर सकते हैं, क्योंकि ये सो भी इस स्टूडेंट का और ये डिस्प्ले भी इस स्टूडेंट का। तो क्लास के अंदर तो प्राइवेट या पब्लिक प्राइवेट को कर ही सकता है, लेकिन कहता है कि क्लास के अंदर भी अगर किसी क्लास के डेटा को, ठीक है, अगर मेथड के जरिए यूज करना है तो भी आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट
करना पड़ेगा बिना ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट। इसके पहले मैंने डायरेक्ट जानबूझ के लिखा था, ठीक है। यहाँ पे बिना एम बनाए मैंने सो को डायरेक्ट कॉल किया, क्या आया, एक्सेप्शन आ गया। और उसके बाद मैंने एम नाम का एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया और एम डॉट शो कर दिए, एक्सेस हो गया, ठीक है। इसका मतलब कि क्लास के बाहर या क्लास के अंदर अगर एक मेथड से दूसरे मेथड को आपको कॉल करना है तो आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। पड़ेगा, ठीक है। तो एक पॉइंट ये भी आप ये वाला भी लिख लीजिए ताकि ये आपको कंसेप्ट देगा, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट फॉर कॉलिंग किसके लिए, यहाँ आप ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं, ताकि आप शो मेथड को कॉल कर सकते हैं। कॉल कर सकें। ओके ओके, आगे बढ़ा जाए। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। सर, यस सर। क्या आगे सर। बढ़ा जाए? हेलो सर, yes. हाँ बोलिए। इससे पहले भी तो कॉल किया जा रहा था ना, अभी जो बताइए हिप्स वाला नहीं समझे। अभी जो बताएं, बोले ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं, नहीं इससे पहले भी तो हो जाता रहा तो कॉल। इसके पहले क्या हो रहा था, इसके पहले शो क्या था, पब्लिक था ना। यस सर। अब शो क्या किए, प्राइवेट बना दिए। तो बाहर में ये जो एस जो है इसके साथ शो कॉल होगा। यस सर। जैसे यहाँ पे अगर इस लाइन को कंट्रोल एक्स कर दिए, अभी इस क्लास का क्या मतलब है, यूजलेस क्लास है। यस सर। क्यों क्लास है यूजलेस, प्राइवेट। क्लास है पर यूजलेस है। क्यों यूजलेस है, व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस स्टूडेंट क्लास इज अ यूजलेस क्लास, because class data and class method all are defined in private scope, ठीक है। तो जब प्राइवेट स्कोप में सारे चीज को कर दिए हैं तो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करके हम उस ऑब्जेक्ट से एक्सेस करेंगे तो कुछ एक्सेस होगा। नो सर। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस स्टूडेंट क्लास इज अ यूजलेस क्लास, ठीक है। अब मान लीजिए अब हम उसको यूजफुल बनाना है, तो यूजफुल बनाने का एक तरीका तो ये हो गया कि शो को क्या कर दें, पब्लिक कर दें। अब हम मान लेते हैं कि ये प्राइवेट ही रहने देते हैं, तो कहता है कि एक दूसरा पब्लिक मेथड बना लीजिए, कोई एक दूसरा पब्लिक मेथड इसके अंदर बना लीजिए जो आप ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेसिबल कराएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, किस नाम से, डिस्प्ले, ठीक है। ये डिस्प्ले तो एक्सेसिबल होगा, तो कहता है कि हाँ बिल्कुल एक्सेसिबल होगा। लेकिन डिस्प्ले हम क्यों बना रहे हैं, क्या करेंगे इसमें, तो सर इसी में तो हम शो को यूज करना चाहेंगे, ये तो कर सकते हैं। तो कहता है हाँ ये तो बिल्कुल हो सकता है, क्लास के अंदर तो प्राइवेट डेटा को, प्राइवेट मेथड को यूज करेगा ही, लेकिन कैसे करेगा, क्या हम डायरेक्ट शो लिख देंगे तो एक्सेस हो जाएगा। तो कहता है कि नहीं, चाहे आप क्लास के बाहर या क्लास के अंदर अगर किसी मेथड को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट ही एकमात्र विकल्प है, यानी ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इस क्लास के अंदर ही क्लास का एक ऑब्जेक्ट किस नाम से बनाया, एम नाम का बनाया, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट इस डिस्प्ले का लोकल है, यानी जब तक ये डिस्प्ले लाइव है ये ऑब्जेक्ट भी लाइव है, डिस्प्ले खत्म तो ऑब्जेक्ट भी खत्म। लेकिन ये एस जो है, जब तक ये प्रोग्राम लाइव है तब तक ये एस लाइव है, प्रोग्राम खत्म होगा तब ये एस खत्म होगा। पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक है। तो ये एक टेम्पोररी ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है, जो एम नाम का बना रहे हैं, इसलिए ताकि इसका इस्तेमाल करके हम किसको कॉल कर सकें, शो को कॉल कर सकें। दैट्स इट, यही पर्पस थी।
आगे बढ़े। यस सर। ओके ध्यान से देखना है। ये सही है कि गलत है? गलत है सर। गलत है। क्या गलत लग रहा है? सर सेल्फ डॉट एक्स नहीं होगा सर, एक्स को हम सर स्टूडेंट का तो डेटा नहीं ना क्लास का, हम अच्छा एक्स को तो सर यहाँ उसमें यहाँ input एक्स ले होगा। रहे हैं। एक मिनट, यहाँ एक्स होगा। नहीं सर ऐसा नहीं कर सकते हैं ना सर। तो कैसे करेंगे वही बताइए। सर पहले एक हम लोगों को इस क्लास का एक और यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा शो में। क्यों ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा? ऑब्जेक्ट सिर्फ मेथड के लिए यूज करना है, डेटा के लिए नहीं। और एक्स तो एक डेटा है, और ये दोनों दोनों इनपुट और शो दोनों मेथड किसका है? स्टूडेंट का है। और मुझे कोई नेस्टिंग नहीं करना है, ना ही मुझे शो में इनपुट को कॉल करना है, इनपुट में शो को कॉल करना है, ऐसा करना ही नहीं है मुझे। कहाँ कर रहा है? Yes, और मैं ऑब्जेक्ट जो बनाया बाहर, उससे मैं इनपुट और शो दोनों को कॉल कर रहा हूँ। क्या ये लाइन सही है या गलत है? क्या गलती आपको दिख रहा है? अच्छा, इस इनपुट में ये जो एक्स है, ये किसका एक्स है? इनपुट लोकल है सर। देखिए, इनपुट का एक्स है सर वो। दो चीज समझना है। क्लास मेथड का जो अपना डेटा होता है वो मेथड का अपना होता है, उसको हम लोग लोकल के हिसाब से, लोकल ग्लोबल के हिसाब से समझते हैं, ठीक है। और प्राइवेट पब्लिक के हिसाब से क्लास को समझते हैं, ठीक। क्या इस क्लास में कोई डेटा है? नो नहीं सर। है। इस क्लास में कोई डेटा है? नो सर। नो सर। नहीं है, ठीक है। तो ये एक्स जो है, ये किसका रिकॉग्नाइज हो रहा है? इनपुट इनपुट। का सर, इनपुट एक्स का। अरे भाई, ये एक्स जो है ये इस इनपुट का है। क्या इस इनपुट में एक्स में जब हम इनपुट कराएंगे तो क्या शो उसको एक्सेस कर लेगा? नहीं सर, उसका लोकल है तो कहाँ से करेगा? कहां से करेगा? ठीक। तो इसको कराना है तो क्या करना होगा? एक्स को किसका बनाना होगा? शो का बनाना पड़ेगा। हाँ, किसका बनाना? शो का बनाना पड़ेगा सर। घूम गए हो तुम लोग यार, यही तुम लोग कुछ नहीं समझ पा रहे हो। क्या क्लास का डेटा और क्या फंक्शन का डेटा? अरे फंक्शन जो पहले था वही अभी भी है, ठीक है। हमको यहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है क्लास पे, ठीक है। ये एक्स किसका है? स्टूडेंट का है या इनपुट का है? इनपुट का सर। इनपुट का है। इनपुट। इनपुट का लाइफ साइकिल कहाँ से शुरू होके कहाँ पे खत्म हो रहा है? इसी लाइन पे शुरू होके इसी लाइन पे खत्म हो जा रहा है। यानी एक्स बना और यहीं पे एक्स खत्म भी हो गया। हो गया?
यस सर। अब जब सो में आएंगे और आप एक्स को डिस्प्ले कराएंगे तो ये कहेगा कि मेरे अंदर तो कोई एक्स नाम को कुछ आपने डिक्लेयर ही नहीं किया है, तो मैं क्या शो करूंगा। ठीक है, मेरा कोई एक्स नहीं है, यहाँ एरर दे देगा। अभी मैं रन करा रहा हूं। क्या लिख रहा है, नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड। डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्चुअली में इनपुट का है, ये तो लोकल है। जब तक इनपुट जिंदा है एक्स मिलेगा। अगर मैं यहीं पे करके यही प्रिंट करा दूं तब तो मेरा काम हो जाएगा। यस सर। अगर मैं यहीं पे प्रिंट एक्स कर दूं तो मेरे को बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं रन करा दूं, ये देखिए 44। ठीक है, देखिए वो 44 आ रहा है, लेकिन आप उस एक्स को चले गए कहां पे, यहाँ पे भी यूज करने। यहाँ तो लाइफ साइकिल इसका यहीं पे लाइफ खत्म हो जा रहा है। यस सर। ठीक है, ये तो डेड हो गया तो एक्स भी खत्म। तो एक्स खत्म तो सो में कहां से एक्स मिलेगा। No, sir. ठीक, तो एक तो ये है कि भाई अगर ऐसे काम लेना है तो इनपुट का अलग बनाइए, सो का अलग काम कीजिए। लेकिन अगर दोनों में एक्सेसिबिलिटी करना है तो इस डेटा को हमको क्या बनाना होगा, किसका बनाना होगा, स्टूडेंट का बनाना पड़ेगा सर। स्टूडेंट का बनाना होगा। क्या बनाना होगा, स्टूडेंट का। तो क्या स्टूडेंट का ऐसे बनेगा, तो पता है नहीं बनेगा ना सर, आपको लगाना पड़ेगा क्या। Cell. अब ये लाइन हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या दे देते हैं, सेल्फ। अब ये सही होगी। आई बात समझ में। Yes, अब sir. वही चीज जो अभी इसके पहले कर रहे थे नहीं हो रहा था, अब होने लगा, क्योंकि ये एक्स ना इनपुट का है ना सो का है, स्टूडेंट का है। और इनपुट सो दोनों स्टूडेंट का मेथड है, तो उस एक्स को यूज करेगा। ठीक है, यस सर। ठीक, तो इसको नोट कीजिए। सर हम्म, मतलब सर अगर एक मेथड के किसी लोकल डेटा को दूसरे मेथड के डेटा के रूप में यूज करना है, तो जो लोकल वाला हमारा डेटा है सर, एक उसको मेथड हमको- के किसी लोकल डेटा को किसी दूसरे मेथड के में आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं। एक मेथड के किसी लोकल डेटा को दूसरे मेथड में आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि मेथड का डेटा सिर्फ मेथड का अपना होता है। जब वो मेथड इन्वोक होता है, उस डेटा को जिंदा करता है, और जैसे ही मेथड का काम खत्म हो जाता है, वो अपने डेटा को क्या कर देता है, डेड कर देता है। तो फिर दूसरे मेथड में उसके मिलने के चांसेस ही नहीं होंगे। हाँ, क्लास का डेटा अपने अंदर डिफाइंड जितने भी मेथड्स है सबके लिए लाइव रहेगा, सबके लिए लाइव रहेगा। ठीक है, जैसे ये self डॉट एक्स, चूंकि हम एक्स लगा दिए, मतलब ये डेटा इन दोनों में से किसी का नहीं है, ये किसका है, स्टूडेंट का है। स्टूडेंट का है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब तक ये स्टूडेंट चलेगा, ठीक है, स्टूडेंट कब खत्म होगा, जब ये सारे फंक्शनलिटीज खत्म होंगे तब ना खत्म होगा। तो कहता है कि ये पूरे प्रोसेस के लिए, पूरे क्लास के लिए मैं इस एक्स को लाइव रख रहा हूं। तो उसमें इनपुट भी यूज करेगा, शो भी यूज करेगा। ठीक है, आप इसमें 50 फंक्शन बनाइए, उसमें एक्स यूज कीजिए, यूज होगा। एक और फंक्शन बना के एक्स यूज कर दें। समझ गया सर। समझ में आ रही है बात। Yes, यस sir. सर। कोई भी फंक्शन का अपना डेटा, ठीक है, सिर्फ उसी फंक्शन के लिए होगा, दूसरे के लिए नहीं होगा। जैसे इस इनपुट नहीं। का अपना एक डेटा हमने ले लिया, इसके अंदर y इज इक्वल टू 99। तो ये कह रहा है कि y मेरा है, मैं जब कॉल होऊंगा, जिंदा होऊंगा, y 99 भी जिंदा होगा, मेरा वर्क खत्म होगा, ये y 99 खत्म हो जाएगा।
अब मैं इस y को इस सू के अंदर एक्सेस करने की कोशिश करूं, मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, यही दिमाग में रखना है कि जो फंक्शन के अपने डेटा होंगे वो सिर्फ उसी फंक्शन के लिए होंगे, बाकी सारे फंक्शंस के लिए नहीं होंगे। लेकिन जो क्लास का डेटा होगा वो इंटायर उस क्लास के जितने मेथड्स होंगे सबके लिए सबके लिए होगा। बस और यही सर यहाँ दिमाग सेल्फ में लगा रखना। के वही ना कर रहे हैं सर, हाँ, सेल्फ लगा के हम वही कर रहे हैं। कोई भी डेटा Actually में को ये- सर क्लास का बना दे रहे हैं। हाँ, आप यहाँ पे x बराबर ऐसे लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कि कोई इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन है ना। जैसे सेल्फ दिए वो मान लिया कि यहाँ पे x है और जो आप इनपुट किए वो असाइन हो गया। समझ गए? यस सर। चलिए, ये हम इसको इरेज कर दे रहे हैं और इसको नोट कर लीजिए और इसको रन कराइए। इतना कीजिए। अगले क्लास में कुछ पैरामीटराइज बताएंगे, इसमें फंक्शंस पैरामीटराइज कैसे यूज करेंगे, और वो सीख लेंगे तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का कंसेप्ट बताएंगे। क्या होता है, फंक्शन ही होता है, मेथड होता है, क्या यूज है, क्यों करेंगे उसका यूज। ठीक है, तो ये सब पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तब तक इतना प्रैक्टिस कर लीजिए और अगर दिक्कत आए तो अगली क्लास में आके समझिएगा। अभी आपको आज के क्लास में जो फोकस करना है वो क्लास के अंदर क्या क्या है, प्राइवेट क्या है, पब्लिक क्या है, कैसे यूज हो रहा है, पब्लिक एक्सेसिबल होगा, प्राइवेट एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक है, किस हालत में प्राइवेट बनाएंगे, क्या सारे चीजों को प्राइवेट बना सकते हैं, तो जवाब है नहीं, कुछ को हमको पब्लिक रखना होगा। ठीक है, ओके। तो अगर डेटा प्राइवेट है तो मेथड को पब्लिक रखिए, अगर डेटा और मेथड दोनों प्राइवेट है तो एक मेथड ऐसा रखिए जो कम से कम पब्लिक हो, जिसमें आप उस डेटा और मेथड को क्या कर सकें, यूज कर सकें। ठीक है, हर एग्जांपल्स आपको दे दिया गया है, समझा दिया गया है। इसको पहले प्रैक्टिस कर लीजिए और इतना करने के बाद नेक्स्ट क्लास में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आते सबसे पहले पूछ लीजिएगा। ठीक है। यस सर।